कि पुण्य अपने आप को सुरक्षा स्वास्थ्य एवं पर्यावरण के बचाव प्रति संप्रदायों का पालन हेतु यथाशक्ति प्रयत्न करूंगा और निश्चित रूप से इन लक्ष्यों को प्राप्त करने एवं आदतों का विकास करूंगा। मेरा यह पूर्ण रूप से बीमारियां राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का दुर्लभ बनाती है तथा यह विकलांगता मृत्यु एवं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है एवं संपत्ति की क्षति सामाजिक कष्ट पर्यावरण के निकृष्ट होने का कारण बनती है। मैं अपने परिवार संगठन के हित में दुर्घटना व्यावसायिक बीमारियों को रोकथाम और पर्यावरण के बचाव के लिए सेफ्टी फर्स्ट। शुक्रिया। जय सुरक्षा, जय सुरक्षा। अभी अपने साहब को जरार भाई एक शाल लेकर कर उनको ये करेंगे, सम्मानित करेंगे। शुक्रिया जरार सर। सर आपके लिए एक मोटिवेशनल स्पीच देने वाले हैं, सुनिए। थैंक यू। 15th నేషనల్ సేఫ్టీ వీక్ సెలబ్రేషన్ సందర్భంగా నన్ను ఆహ్వానించిన కటేరా యాజమాన్యానికి, కార్మికుల సోదరులందరికీ నా నమస్కారంలో। सभी इंडिया है इधर, साउथ नॉर्थ ईस्ट वेस्ट सब मिलके है ना। ठीक है, ये हमारा तेलंगाना है। मैं तेलुगु का आदमी है, मैं तेलुगु में बोलता हूँ, आप सुनिए, नहीं तो ये ट्रांसलेट करते हैं। ठीक है, ओके। सुरक्षा 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 का मीनिंग मालूम है? कोई बोलते हैं सुरक्षा? अरे अभी शपथ करें ना हम, जय सुरक्षा। మనందరం కూడా సురక్షితంగా పనిచేసి మనకి ఎలాంటి ప్రమాదాలు జరగకుండా మన కంపెనీని, మనకు ఉపాధి కల్పించిన కంపెనీని ముందుకు తీసుకెళ్తూ మనం మన కుటుంబాలని పోషించుకుంటూ ప్రమాదాలు జరగకుండా మనం సేఫ్టీలో ఉండడాన్నే సురక్ష అంటారు। కాబట్టి అందరం కూడా మనం వ్యక్తిగత డిసిప్లిన్ ఉండాలి, ఏ పని చేస్తున్నా డిసిప్లిన్ ఉండాలి। ఆ డిసిప్లిన్ తోటే మనం ఏ పనినైనా సరే సక్సెస్ గా సాధించగలం। నిజమా ఇది? తెలుగు వినే వాళ్ళు ఒక్కరు కూడా చేయలేపరా? కరెక్టా? ఓకే। ప్రతి ఒక్కరూ కూడా వ్యక్తిగత డిసిప్లిన్ ఉండాలి। మనకు డ్యూటీ ఒక వైపు ఉంటే డిసిప్లిన్ ఇంకో వైపు ఉంటుంది। ఈ డిసిప్లిన్ ఉన్న వాళ్ళు ఎక్కడన్నా సక్సెస్ సాధిస్తారు। అది పర్సనల్ లైఫ్ లో కానీ ప్రొఫెషనల్ లైఫ్ లో కానీ డిసిప్లిన్ ఉన్న వాళ్ళే సక్సెస్ సాధిస్తారు। మనందరికీ డిసిప్లిన్ ఉంటేనే మనం చేసే ప్రతి పనిని కూడా దాంట్లో సక్సెస్ సాధించగలం, మన కంపెనీకి మంచి పేరు తేగలం। కాబట్టి మనకు ప్రతి దాంట్లో కొన్ని నియమ నిబంధనలు ఉంటాయి। ప్రతి కంపెనీలో కానీ ప్రతి వ్యవస్థలో కానీ నియమ నిబంధనలు ఉంటాయి। వాటన్నిటిని మనం తూచా తప్పకుండా పాటించి ఆ పని చేస్తేనే మన పర్సనల్ లైఫ్ కి, మన ఉపాధికి, కంపెనీ యొక్క అభివృద్ధికి కూడా మంచి జరుగుతుంది। కాబట్టి నేను నా తరపున, పోలీస్ తరపున నేను తెలియజేసేది ఏంటంటే, మీరు వ్యక్తిగత డిసిప్లిన్ పాటిస్తేనే మీ కంపెనీ అనేది వృద్ధిలోకి వెళ్తుంది, మీ పర్సనల్ లైఫ్ కూడా బాగుంటుంది। తర్వాత డిసిప్లిన్ కంపెనీ లోపలే కాదు, బయట కూడా మీ డ్యూటీ అయిపోయి బయటికి వెళ్ళిన తర్వాత కూడా అదే డిసిప్లిన్ తో మీరు బయట కూడా నివసించాలి। ఎక్కడెక్కడి నుంచో వచ్చి ఇక్కడ మనం బ్రతుకుతూ ఉంటాం, మనకు ఇక్కడ ఉపాధి దొరికింది కాబట్టి ఇక్కడే రెంట్కుంటాం, ఇక్కడ మనం
ఉపాధికి తీసుకుంటా ఉంటాం. మనం బయట కూడా ఇదే డిసిప్లిన్తో సొసైటీతో ఎలా ఉండాలనేది కూడా ఒక డిసిప్లిన్ ఉంటుంది. అందరితో మంచి భావంతో ఉండాలి. తర్వాత మనం వెహికల్స్ మీద, కార్స్ మీద, బైక్ల మీద కానీ కార్ల మీద కానీ మూవ్ అవుతూ ఉంటాం బయట రోడ్ల మీద. అక్కడ కూడా మనం డిసిప్లిన్ పాటించాలి. డ్రైవింగ్ లైసెన్స్, హెల్మెట్, ఇన్సూరెన్స్ ఇవన్నీ కూడా మన వెహికల్కి ఉండి మనం ఏదైనా ప్రమాదాలు జరిగినా అవి మనకు సేఫ్టీని ఇస్తాయి. మన వల్ల ఎదుటి వ్యక్తి ఎవరికన్నా ప్రమాదం జరిగినా వాళ్ళకు కూడా సేఫ్టీ ఇస్తాయి. కంపల్సరీ కంపెనీలో జాబ్ చేసేటప్పుడు ఏ డిసిప్లిన్ అయితే ఉంటుందో బయటికి వెళ్ళిన తర్వాత కూడా మీ పర్సనల్ లైఫ్లో కూడా సేమ్ డిసిప్లిన్ పాటించి మీ కంపెనీకి, మీ సొసైటీకి మంచి చేయాలని కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. జై సురక్ష. सर का आपको समझ में नहीं होगा, मगर सर जो इन्फॉर्मेशन दिए अमूल्य इन्फॉर्मेशन दिए। जैसा कि आप सुरक्षा माने आप खुश रहना, आपका परिवार खुश रहना और आपके वजह से कंपनी भी खुश रहना, वो भी सुरक्षा है। और आप काम करते समय डिसिप्लिन रहे तो आप कहां पर, ये कंपनी में नहीं, कहां पर भी जाकर आपको सुरक्षित रहोगे और आप तरक्की लोगे। आपको डिसिप्लिन कंपनी के अंदर ही नहीं, बाहर जाकर भी आपको लोकल में रह रहे, दूसरे कोई घर में रह रहे, आप कितना डिसिप्लिन से रहोगे आपका घर का ओनर उतना अच्छा रहेगा। रोड साइड में कुछ शॉप के पास भी आप जितना डिसिप्लिन से उससे बात कर रहे तो भी वो आपको उतना डिसिप्लिन और आपको उतना मर्यादा ये आपको ये देगा। तो उसके लिए सेम सार बोले सो क्या है, आप डिसिप्लिन मेंटेन कीजिए और बाहर रोड पे उधर इधर जाते समय गाड़ी, टू व्हीलर या किसमें भी करते समय आप आपका सुरक्षित देख लीजिए। क्यों, आपको कुछ हुआ तो आपके परिवार को और कंपनी को दिक्कत पहुंचेगा। ऐसा बोलकर सार आपके परिवार और जैसा कि सार जो डिपार्टमेंट है वो डिपार्टमेंट आपका परिवार और कंपनी को मिलाकर अपने को अमूल्य संदेश दिए। सार के लिए एक बार ताली हो जाए। अभी जरार सर आपके लिए थोड़े मोटिवेशनल एक स्पीच देने वाले हैं, सुनिए। जैसे कि सर ने बताया, सेफ्टी सिर्फ ऑफिस में या सेफ्टी बस ऑफिस में या वर्क प्लेस में नहीं है। सेफ्टी आप जैसे कि डिसिप्लिन की बात की सर ने, डिसिप्लिन अगर लाइफ में हो ना तो यहाँ पे नहीं, आप बाहर भी जाते हो, रास्ते पे जाते हो, बाइक ड्राइव करते हो या कार ड्राइव करते हो या पेडेस्ट्रियन वॉकिंग करके जाते हो, एक सेफ्टी का कंसर्न होता है। आपको पता है कि रास्ते के बीच में से जाएंगे तो कोई भी ठोक के जा सकता है, राइट? तो उसके हिसाब से सेफ्टी हर जगह पे है। और यहाँ पे वर्क प्लेस में सिर्फ सेफ्टी आपका सेफ्टी नहीं है, आप रास्ते से जा रहे हो, आप देखा वहाँ पे कुछ रास्ते में गिरा हुआ है तो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि उसको उठा के साइड में कर दें ताकि दूसरे को तकलीफ ना हो। सेफ्टी मतलब दूसरों के बारे में भी सोचना सेफ्टी है। आपको लगता है कहीं पे कुछ हजार्ड है, लगता है केबल वहाँ पे डैमेज है, आप इलेक्ट्रिक केबल्स के बीच में काम करते हो, लगता है कोई मशीन डैमेज है, कुछ इश्यू लगता है आपको कि उससे कोई दूसरे को तकलीफ हो सकती है, आपने देख लिया उसको तो आपको पता चला कि वहाँ पे हजार्ड है, लेकिन दूसरे को पता नहीं चलेगा। वहाँ पे वो आएगा, सीधा मशीन उठाएगा, वो केबल उठाएगा, उसको यूज करेगा। तो उसको जब आपको पता चलता है तो या तो उसको निकाल के साइड में रखना चाहिए या अपने सुपरवाइजर को बताना चाहिए कि यहाँ पे प्रॉब्लम है, किसी दूसरे को तकलीफ हो सकती है। एक दूसरे का ख्याल रखना भी सेफ्टी है। आप अगर अपने वर्क प्लेस में देखोगे आपको बहुत कुछ दिखेगा। पहले साफ सफाई रखना है, किसी का पैर पे टक्कर लगे गिर सकता है, काम किया उठा के सामान वहीं पे फेंक दिया, इससे सेफ्टी का खतरा है। तो आप सबकी जिम्मेदारी बनती है कि खुद का भी ख्याल रखें और दूसरों का भी ख्याल रखें, ये सबकी जिम्मेदारी है। हम लोग सब यहाँ पे काम करने के लिए आते हैं, हमारे पीछे अपनी फैमिलीज होती हैं, एक के ऊपर चार लोग और डिपेंड होते हैं, 5 लोग और डिपेंड होते हैं। एक किसी के हाथ चोट आ गई, किसी का हाथ फ्रैक्चर हो गया तो सिर्फ उसको तकलीफ नहीं है, उसकी फैमिली को तकलीफ होती है, क्योंकि उसके पीछे 4-5 लोग और होते हैं, 10 लोग और होते हैं जिसकी जिम्मेदारी उस पर होती है। तो हर कोई अपना ख्याल रखे, दूसरों का ख्याल रखे, वर्क प्लेस को सेफ प्लेस बनाए। ओके, थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया जरा सर। अभी आप में से कोई कुछ बात करने वाले हैं, कुछ स्पीच वाले कोई है? राहुल के लिए एक बार ताली हो जाए। साइकिल भी लगा रहता है तो हवा चलने के टाइम पे साइकिल को मैटर खुल जाता है। अगर साइकिल को उसमें छोड़ देते हैं तो हवा से टकरा के साइकिल खुल जाता है, कहीं नहीं गिर सकता, किसी के साथ नहीं गिर सकता। इसलिए हमारा कहने का संदेश यही है कि आप लोग इलेक्ट्रॉनिक पोजिशन में कहीं भी जाते हैं तो थोड़ा
कहते हैं कि आगे भी देखो, पीछे भी देखो, नीचे भी देखो, दाएं बाएं सब देखो, मगर इसमें कहता है कि ऊपर भी देख के चलो। अगर ऊपर नहीं देखेंगे तो ऊपर से कुछ भी गिर सकता है, और गिरेगा तो हमारे सच्चे गिरेगा। तो फिर हमारे ऊपर गिर गया, उसका हम आवाज देने क्या मतलब है? अगर हमारी समझदारी यही है कि हम वहाँ पे खड़े रहें, आदत है इसकी बोलने की, एक बार बोलेंगे तो बार बोलेंगे, गाँव में बैठा और आपको छोटा सा एक रिक्वेस्ट है, सारा रिक्वेस्ट